Senior Vice President and Head of Portfolio Management Services at Reliance Capital Asset Management Limited. With over 30 years in his career, is marked by significant contributions to learning and development. To guide us through his depth, we are privileged to host a beacon of intellectual exploration, Mr. Rajesh Bhatia sir. So without further ado, let us give a warm welcome to Mr. Rajesh Bhatia sir. Do show clapping sign on your Zoom. Thank you, sir. Thank you. Yeah, Rajesh sir, over to you. And to add a few lines in the Rajesh sir ने जब ITA take over किया था as a CIO, that time the AMC was not really doing well. Honestly, it was a really tough time for even him also, and that was a great signature what he had कि उन्होंने पूरे AMC को टर्न अराउंड करके now उनके काफी सारे फंड्स जो है वो क्वार्टर 1 में चलते हैं, and the AMC is really doing a fantastically great job. Yes, over to Rajesh sir. Thank you everyone for joining us on this call today. देखिए, I think let me just dive into बाजार में क्या हो रहा है, because I think that's the most hottest question. जी. And I think हमको काफी queries आती हैं कि small and mid cap का outlook अभी क्या है, जी. given that certain AMCs have also flagged off that there is enormous risk with small and mid cap, etc. etc. So let me just dive in right away into market क्या लगता है. देखिए, एक चीज जो हमने हमेशा सुनी है लोगों से, अन्य फंड मैनेजर्सों से ओवर द इयर्स, स्पेशली द लास्ट 4-5 इयर्स, कि भारत देश की स्ट्रक्चरल स्टोरी में कोई डैमेज नहीं है. इनफैक्ट भारत देश की स्ट्रक्चरल स्टोरी काफी स्ट्रांग है. तो एक कन्विक्शन हमें याद रखना पड़ेगा, स्पेशली जब मार्केट नीचे आता है. तो that is the time when you have to realize that the medium and the long term drivers, the structural drivers of India are very, very strong. The foundation is very strong. So why do I say that? पहला चीज जो लोग देखते हैं for GDP growth rate over the medium term, वो होता है कि demographics कैसा है आपका. Demographics meaning 50% of the population of India is less than 35 years old, right? That's a very young population. तो मान लीजिए आपके घर में अगर 5 जन कमाते हो, राइट, तो आपकी आमदनी अच्छी होगी. लेकिन 5 में से 3 जन रिटायर हैं और सिर्फ 2 कमाते हैं, मतलब उनकी उम्र होगी, और थोड़ी सिर्फ 2 जन आपकी यंग है, तो आपके उतनी आमदनी कम हो जाती है. सिमिलरली एक देश में द सेम थिंग हैपेंस. द मोर यंग पीपल दैट यू हैव व्हिच आर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग, द GDP growth rate goes up. The incremental GDP growth rate is dependent on number of people working multiplied by productivity. So the fact that India has a very young population and we are not going to get old for the next 30 years is a very powerful tailwind. ये काफी बड़ा tailwind है हमारे लिए, जो हमको growth rates को बरकरार रखेगा for the next 3, 5, 10 years. दूसरी चीज है कि Consumption as a percentage of our GDP is close to 60%. चाइना के लिए 40% है. Consumption ज्यादा होना as a percentage of GDP का क्या मूल्य है? उसका मूल्य यही है कि consumption less cyclical होता है. मान लीजिए investment led कुछ है, real estate cycle है. Real estate cycle investment led होती है, consumption led नहीं. लेकिन उसमें आप cyclicality बहुत बड़ी देखते हैं. 5-5 साल बहुत जोर की तेजी आती है और 5 साल जोर की मंदी आती है. ये इंडिया का जो कंजम्पशन है, इट स्मूदन्स और गिव्स यू मोर स्टेडी स्टेट ग्रोथ एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. अब मैंने बताया चाइना के लिए इट इज 40%. चाइना का GDP जो इन्वेस्टमेंट लेड अब फॉल्टर हो रहा है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स अब कम हो रहे हैं, तो उनका GDP का क्या हाल हुआ है? 9% से वो 3% पर आ गए ग्रोथ रेट. तो ये सेकेंड फैक्टर जो हमारा कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, वो एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ देता है, और ये भी हमें याद रखना चाहिए. तीसरी बात, हमारे बैलेंस शीट्स काफी अच्छे हैं. अगर आप कॉर्पोरेट बैलेंस शीट देखें तो डेट लाइट है. बैंक की बैलेंस शीट NPA लाइट है. हाउस होल्ड बैलेंस शीट थोड़ी डेट बड़ा है, लेकिन स्टिल कंपेयर टू एनी अदर मार्केट
forget developed market, even emerging market, household balance sheet काफी strong है. And government balance sheet थोड़ा high है, लेकिन it is still under control. So our balance sheet का मूल्य क्या है? मतलब बैलेंस शीट स्ट्रांग होने से क्या फर्क पड़ता है? ये आप खुद के एक एग्जांपल में देख लीजिए. अगर आपकी एसेट्स आर ग्रेटर देन योर लायबिलिटीज, देन योर ना स्थिरता बढ़ती है आपकी of your own household. Similarly, if corporate balance sheets are light, then they can invest in new projects because they don't have debt. They can invest in new projects. If bank balance sheets are light, they can lend to new projects. Lending में problem नहीं होगी, which can aid and assist growth. If if household balance sheets are light, they can consume, they can invest in real estate, they can invest in stock markets, etc. etc. तो इसका मूल्य है कि बेसिकली अगर हमारी बैलेंस शीट लाइट है तो स्ट्रक्चरल कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए. ये तीसरी बात है. चौथी बात मैं कहूंगा कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, ये संजोग आया है कि चाइना प्लस वन इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया. People already know that India is the software export hub of the world. We have 55 lakh people working in the software services sector, and our exports are whatever they are, 180, $200 billion, which are coming through software services. Of course, there are other services that are getting attached and becoming very, very large in India as well. So let us say, आपकी legal back office India है, आपकी अकाउंटिंग बैक ऑफिस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं, वो इंडिया है. फाइनेंशियल मॉडल, अगर गोल्डमैन सैक्स कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाता है ऑफ अ कंपनी, वो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्चुअली इंडिया में होती है. सो अपार्ट फ्रॉम आईटी बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, वी आर आल्सो द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. सो वी आर बिकमिंग द सर्विसेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. नाउ अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन, which I mentioned, 1.4 billion people consuming, and as they are becoming prosperous, they are consuming even more. Apart from consumption and services, we are building infrastructure, roads, railways, etc. You know, I was talking to an American, and I told him that for the next 10 years, only in the power sector, we will require an investment of $500 billion. For the next 10 years, in the power sector alone, we will require $500 billion of investment. He asked me, is that in rupees or in dollars? I said, no, it's in dollars. He was amazed that that kind of investment is going to just one sector of infrastructure in India. So services, consumption, infrastructure, now manufacturing. So because of China plus one, there are a lot of people who want to shift away from China. Which is the largest market that they could come to? It is India. So look at Apple. Apple made all its products in China. Now they have come to India to manufacture. India has become the second largest destination for Apple electronic manufacturing. And they want to export totally $45 billion in the next 3 to 5 years out of India. That's a big, big thing. इससे क्या होता है, एक इकोसिस्टम डेवलप होता है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. जैसे मारुति आया, मारुति ने एक ऑटो एंसिलरी सिस्टम डेवलप किया इंडिया में, वैसे ही एप्पल के आने से एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डेवलप होने जा रहा है. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से सीमित नहीं है, स्पेशलिटी केमिकल, ऑटो एंसिलरीज, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स. आप अगर देख लें, एबीबी, कमिंस, हिटाची ग्लोबल, सीमेंस, ऑल वांट टू मेक इंडिया देयर हब फॉर मैन्युफैक्चरिंग engineering products. So these are very, very long-term drivers. So we must have faith that India is in a very good structural spot. And by the way, the return on equity of India is very, very good. It's 16 to 18%. And what is the return on equity has been for the last 40, 45 years? The same 16 to 18%. So businesses are very profitable in India. Not surprising that equity returns in the last 40, 45 years have also been 16% per annum. Long term, equity returns will move along with ROE. So, agar hamara ROE for such a long period has been 16%, that has led to equity markets also doing as well as it has over a long period of time. So, we have very profitable businesses as well. This framework that we are in a good structural bull market or structural growth opportunity needs to be kept in mind
especially in times like this. So why is the market going down and what to do about it? Right. So market is going down very, very simple terms में. देखिए भाई, हम overvalued हो गए थे, particularly in mid cap and small cap. Okay. मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, सबको पता है. बराबर. एक साल से एक डिस्कशन चल रहा है कि भाई मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी ओवर वैल्यूएशन है, लोकल डोमेस्टिक पैसा बहुत आ रहा है और कंसर्न्स थे. बाजार में क्या होता है, पर जब बाजार ऊपर जाता है ना, तो इट टेक्स स्टेप्स, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है. लेकिन बाजार जब नीचे आता है तो सीधा एलिवेटर लेता है, राइट, वेरी फास्ट. सो आपने देखा पूरा डैमेज जैन और फेब में ही हो रहा है. तो ये एलिवेटर है और मैं कहूंगा कि एलिवेटर में थोड़ा डिक्लाइन बाकी है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप में, बट लार्ज कैप वैल्यूएशंस ऑलरेडी थोड़े बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं. अगर आप निफ्टी के अर्निंग्स देखें तो ऑन अ 27 बेसिस Nifty is quoting at 16 to 17 times earnings. I would not call that very expensive. In fact, that's a 10-year average. So large caps, more or less, मेरे ख्याल से are coming to a good, attractive zone. It doesn't mean that there can be no volatility in the short term. But what I'm saying is you're buying value when it comes to large caps. Mid cap or small cap में मेरे ख्याल से अभी भी जगह है for it to fall, given the excessive valuation that we had seen. So why is suddenly now the market coming down? Because एक एहसास है कि we are into a bit of a slowdown. Why are we in a slowdown? देखिए, इसका एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता चले कि ये क्यों हो रहा है. See, जब कोविड आया था तो गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड रेज स्पेंडिंग. कोविड में ना इंडिविजुअल्स वे स्पेंडिंग, ना कॉर्पोरेट्स वेर इन्वेस्टिंग. सो बाकी बचा कौन? गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को अपना बजट बढ़ाना पड़ा और खर्चे करने पड़े. उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. तो फिस्कल डेफिसिट 9% कर दिया 2020 में. लेकिन ये जस्ट लाइक आपकी स्थिरता के लिए बैलेंस शीट कंट्रोल में रहनी चाहिए. आपकी एक्सपेंडिचर माइनस इनकम should not be very high even for a country. So very responsibly the government has reduced the fiscal deficit from that 9%. It has been consistently bringing it down. Financial year 25 with वर्ष 25 में ये 4.9% हुआ, 4.8, 4.9, और with वर्ष 26 में, financial year 26 में they are planning to keep it somewhere around 4.4. तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुई है और उससे एक तरह का कॉर्पोरेट स्लोडाउन आया है और कॉर्पोरेट स्लोडाउन से उनके रिजल्ट्स थोड़े में इम्पैक्ट आया है, खराब आए हैं. तो corporate slowdown and yet valuation very high. That was the catalyst for the market to kind of come down. इसमें और एक मैं फैक्टर जोड़ूंगा कि the election of Trump, which is a very, very important event which has taken place globally. Trump has a very radical view of the world. He wants to make America great again in 4 forms. He is basically cutting corporate tax. He wants to deregulate businesses. What that means is he wants to, कोई बिजनेस पर उसको पाबंदी लगानी नहीं है. आपको जिस तरह धंधा करना है आप करिए. This is encouraging investments. So deregulate businesses. Third, he wants to raise tariffs on countries, and fourth, he wants to make sure there is no illegal immigration. In fact, he wants people to get out of that country. So ये इसका impact है कि basically dollar has gone up and so have global interest rates. तो 10-year treasury जिसको बोलते हैं US के 10-year bond जो है, 10-year bond के interest rate about 3.6 थे सितंबर में of 25 and 24, and now it's already at about 4.6, 4.7, around that level. It has come down more recently to 4.5 or even lower than that. So ये interest rate बढ़ा और डॉलर बढ़े. आपने देखा कि हमारी रूपी is also kind of correcting because of that effect. So but what happens with all this is that it discourages FIIs. अगर मुझे 5% इंटरेस्ट रेट US डॉलर में मिलते हैं और अगर इंडिया आना है मुझे, तो मुझे करेंसी हेज करना है, तो 2 या 3% मेरा और कॉस्ट बढ़ जाता है. तो मतलब मान लीजिए 7 से 8% तो मेरा
एक रिस्क फ्री रेट है अमेरिका में, और मैं यहाँ इंडिया आता हूँ, तो मुझे कम से कम इमर्जिंग मार्केट के रिस्क के लिए और 5 या 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम चाहिए। पर वो यहाँ जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि इंडिया के वैल्यूएशन अभी भी हाई हैं और इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो एफआईआईएस के जो नंबर आपने देखे नेगेटिव, वो इस कारण से है क्योंकि यूएस डॉलर में ही इंटरेस्ट रेट इतना अच्छा है, और अगर ट्रम्प प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम वहां कॉर्पोरेट टैक्स काटेंगे, बिजनेसेस को डीरेगुलेट करेंगे, तो अमेरिका ही इतना अच्छा मार्केट हो गया है, मुझे इमर्जिंग मार्केट जाने की जरूरत क्या है। तो एफआईआई का जो सप्लाई ऑफ मनी था इंडिया में, वो भी कम हो गया है। सो ट्रम्प का एक फैक्टर है। मैं एक शॉर्ट समरी में बताऊंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रम्प के ज्यादा राइट चलेगा, बिकॉज ये implications यूएस पे भी है if the interest rates go up, etc. So I don't think that Trump effect will last for many months, but for the short term, it is a concern on the market. So to summarize, what is happening is we are experiencing a slowdown. We are experiencing a slowdown because the government has cut its fiscal deficit. It is very good that it has cut its fiscal deficit because it means that there is sthirta in the economy. Macro is stable, although it takes away from growth. But that has resulted in corporate slowdown at a time when valuations were high. So valuations are correcting. I think valuations in the large caps are already reasonable, but in the mid cap and small cap, abhi bhi jagah hai. They can come down. I'm not predicting it. Usually in the markets, when it goes up, it takes steps. When it comes down, it takes the elevator. We are in the elevator phase right now. That's why it's unnerving people. जो डिक्लाइन आती है वो बहुत फास्ट आती है, और वो फास्ट फेज में हम अभी हैं। मेरे ख्याल से ये जो भी करेक्शन आना है, शायद फेब और शायद हो सकता है मार्च में वो पूरा जो करेक्शन आना है वो हो जाएगा। एंड यहाँ से मेरे ख्याल से सोच ऐसी होनी चाहिए कि इसका लाभ कैसे लिया जाए, क्योंकि बिना वजह तो कोई मार्केट डिक्लाइन नहीं होता। वजह है, इसीलिए मार्केट डिक्लाइन हो रहा है। जब आपको लगे कि वैल्यूएशन अब ठीक हो गए हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम है, पर्टिकुलरली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। डबल काउंट मत करिएगा कि मतलब वैल्यूएशन जब ठीक हो जाए तो ये मत सोचिएगा कि अभी भी स्लो डाउन है, बिकॉज स्लो डाउन है इसीलिए तो वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं। एंड दैट वुड बी द टाइम, माय सेंस इज टू लुक एट equities, and put probably money again. Somebody who doesn't want to time it probably should do it in the SIP format. So that is my summary of how I see things. Great. Yes. So राजेश सर बहुत ही कैटेगरिकली अपने मार्केट के वैल्यूएशन के बारे में बात करी, एंड देयर सो मेनी थिंग्स बट एक्चुअली जो आपने बताया। आई एम ओपनिंग द फोरम फॉर द क्वेश्चन Q&A. So I would request everyone जो भी आपके क्वेश्चंस है आप राजेश सर से पूछ सकते हैं, so that you can have the relevant answers as well. Yes, over to everyone. Any question anybody is having? Yes, I am Suryavanshi. हाँ शरद सर बोलिए। Yes, I am Suryavanshi. Yeah. So हाँ सर जैसे हम लोग सुने हैं कि मार्केट इज स्टिल डाउन, फिस्कल डेफिसिट कम किया, ये है वो, बट देन व्हाट इज द फ्यूचर, हाउ क्विकली वी कैन रिकवर फ्रॉम दिस मार्केट? देखिए फ्यूचर तो दो पार्ट में मैंने बताया। लॉन्ग टर्म फ्यूचर मतलब अगर आप 18, 20, 2 साल, 5 साल ले लें तो इंडिया का भविष्य काफी अच्छा है। हमारे ये जो फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो स्लो डाउन आ रहा है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल मूव है बाय द गवर्नमेंट। आरबीआई ने भी सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट काटा है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल मूव है, वो नेसेसरी है। सो मेरे ख्याल से ये जो हो रहा है, आई थिंक जो गवर्नमेंट की तरफ से इन स्पाइट ऑफ द स्लो डाउन, वो जानते हैं कि हम ये करेंगे तो उससे स्लो डाउन टर्न अराउंड नहीं होगा। लेकिन या सो इन स्पाइट ऑफ दैट मेरे ख्याल से इट इज अ गुड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इससे मैक्रो स्टेबिलिटी, स्थिरता ऑफ द इकोनॉमी रहती है। अगर स्थिरता नहीं रही और उन्होंने मान लीजिए कि एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तो वो स्थिरता में लाते लाते 2 या 3 साल लग जाते हैं। हमने जो 2013 में देखा, अगर लोगों को याद हो तो
हमको FCNR बोरोइंग करनी पड़ी 2013 में और काफी समय लगा उस स्थिरता को लाने के लिए। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में ये स्लो डाउन रहेगा। जैसे मैंने बताया एलिवेटर फेज में हम हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्मॉलर मिड कैप का थोड़ा करेक्शन बाकी है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल हैव टू कंटेंट विद। That's a little bit, जैसे शरद जी, आप बट इट शुड बी लुक्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू, अब यहाँ से कब डिप्लॉय करना है वो आपके रिस्क एपेटाइट पे है, बट मेरे ख्याल से अब सोचना चाहिए कि इसको किस तरह इसका एडवांटेज लिया जाए। Okay. And one more thing that Trump is very not predictable, it's unpredictable. And the Sir, index, can I ask something? just 1 minute, Can I complete? हाँ, please, Sharad sir, please go ahead. Yeah. So, ट्रम्प के बारे में जैसे हम लोग सुनते हैं कि he is very harsh on the other world to make his America great. So in Yes. that case, it might so happen that he may take some harsh actions and it will affect our economy as well as the market. So what is your view on that? तो मैंने आपको एक समरी दे दी कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम इनका ये इफ आई कैन कॉल इट नाटक चलेगा। ये थोड़ा शोबाजी है मेरे ख्याल से। देखिए स्कॉट बेसेंट है उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं, उनको काफी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ व्हाट इज मैक्रो स्टेबिलिटी, राइट। जो हमारे गवर्नमेंट और RBI ने जो मैच्योरिटी दिखाई है मैक्रो स्टेबिलिटी की, स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी को काफी अच्छी तरह पता है कि व्हाट इज मैक्रो स्टेबिलिटी। उसने चार दिन पहले बताया, वी आर कीपिंग अ वेरी कीन आई ऑन 10-year ट्रेजरी ऑफ द US, वी विल नॉट अलाउ इट टू गो आउट ऑफ हैंड। नाउ ही हैज गिवन यू अ साइन कि अगर मतलब हम मैक्रो स्टेबिलिटी को काफी ध्यान से रखेंगे। 10-year ट्रेजरी कब बहुत ऊपर जाएगा, जब स्थिरता क्वेश्चन में आ जाए। नाउ ट्रम्प इज नॉट, अपने ब्लैक बॉक्स में नहीं जी रहा, वो भी एक दुनिया में जी रहा है। तो अगर कहीं वो टैरिफ्स लगा रहा है तो टैरिफ का पैसा कौन भरेगा? US कंज्यूमर। मान लीजिए जो $100 में मेक्सिको से US में आता था और अब उसने अब 20% टैरिफ डाल दिए, तो $100 का कॉस्ट 120 हो जाएगा जो इंपोर्ट हो रहा है US में। 120 रुपया कौन भरेगा? US कंज्यूमर। तो इसका इम्पैक्ट US कंज्यूमर पर भी है, तो ये अपने ब्लैक बॉक्स में नहीं रह रहा वो। तो मेरे ख्याल से जो स्कॉट बेसेंट ने हमको बताया है, मैं उसको ज्यादा अहमियत देता हूं, बिकॉज ही इज द ट्रेजरी सेक्रेटरी, ही इज द फंड मैनेजर एंड ही अंडरस्टैंड्स मैक्रो स्थिरता क्या होती है। और अस्थिरता से क्या अंजाम बहुत खराब होता है। तो he has already given you the indication. So ये जो Trump can say what he wants, but my sense is that ये जो like I said ये नाटक, if I can call it that, ज्यादा नहीं चलेगा। 2-3 महीने में मेरे ख्याल से it will die down। लेकिन जब तक चलता है तब तक लोगों की अनसर्टेनिटी रहती है। अब अगर आप कोई बिजनेस में हैं और आप निवेश करना चाहते हैं, अपने प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो बोलेगा मैं 20% टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो आप बोलेंगे यार मैं रुक जाता हूँ यार, पहले देखने तो दो ये करते क्या है। तो उससे क्या एक अनसर्टेनिटी आ जाती है निवेशकों के मन में, और स्पेशली बिजनेस पीपल में। कोई कंज्यूमर बोलता है कि यार मैं पैसा बचा के रखता हूँ, पता नहीं कौन से इकोनॉमी में हम जा रहे हैं। तो ये ग्लोबली इट ब्रिंग्स अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी, इट ब्रिंग्स कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स टू अ स्लो डाउन, इट कंज्यूमर्स टेंड टू होल्ड बैक। It is not good for the global economy as well. But like I said, I don't think this will last too long. Sharad, I hope I have answered your question. Yeah, thank you. Sir, how much time it will take to recover the market, sir? See, Rishi ji ना? हाँ, ऋषित जी। Yeah, Rishi ji, देखिए, you know, some of these questions are not. This requires forecasting, right? हम एक साल से लेटर से अगर बता रहे हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, लेकिन जाके कब इंपैक्ट आया? जनवरी फरवरी में, राइट? तो हम बता सकते हैं कि स्टेट ऑफ द मार्केट क्या है।
वो कब वो स्टेट ऑफ द मार्केट चेंज होगा वो कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा अनुमान है कि ये जो एलिवेटर में जो अब है on the decline side, it will mean that very quickly some market prices will come to levels which I think are attractive. Because थोड़ी मैं तो सेंस कर रहा हूँ थोड़ी घबराहट हो जा रही है, और जब घबराहट होती है मतलब लोग थोड़े पैनिक में बेचते हैं, राइट? ऐसा मेरा अनुमान है, ये मेरा पर्सनल निजी व्यू है, यू नो, जो मुझे दिख रहा है, मैं तो आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है, प्लीज डोंट होल्ड मी अकाउंटेबल टू इट, बट मुझे दिख रहा है कि लोग थोड़े घबराए हुए हैं और लोग का थोड़ा कंसेंसस बनते जा रहा है कि अरे मिड कैप और स्मॉल कैप खराब है, बेच दो, राइट? तो ऐसे में सुनने में मुझे और भी ज्यादा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्शन होना है वो फटाफट हो जाएगा। फेब मार्च में आपको एक तरह का वैल्यूएशन सैनिटी देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। सर मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि स्लो डाउन कब तक चलने वाला है ये स्लो डाउन? देखिए, स्लो डाउन को अरेस्ट करने क्या के ये लिए वो ब्लैक स्वान वाला स्लो डाउन आएगा या फिर थोड़ा कम ही नहीं, आएगा? मेरे ख्याल से कमी आएगा, ये मेरा अनुमान है। ओके, और मैं क्यों मेरा ऐसा अनुमान है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि हर काम अपने को लॉजिक से ही करना है, राइट? सो ये लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि हमने ऐसा कोई मैक्रो अपना नंबर खराब नहीं किया जो, अगर हमने फिस्कल डेफिसिट काटा है, मैं कहता हूँ ना, उससे स्थिरता है, स्थिरता से ग्रोथ कम से कम थोड़ी कम आएगी, लेकिन उसको रिबाउंड करना भी आसान हो जाता है जब टेलविंड आ जाए। बैंक्स हमारे अभी भी अच्छे बैलेंस शीट पे बैठे हैं। गवर्नमेंट कैन ऑलवेज टेल बैंक्स आप लेंडिंग शुरू कर दीजिए, राइट? जो पहले आपने अनसिक्योर्ड लोन्स काटे थे, यू नो, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट ग्रोथ अगर इकोनॉमी में शुरू होगी, दैट इटसेल्फ ब्रिंग्स ग्रोथ। सो मेरा अनुमान है कि स्थिरता इज अ वेरी powerful thing, it's a very strong thing, and therefore my sense is that sooner or later our slowdown will ये खा जाएगी, और खाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन over a period of time my sense is that we will start rising again. But by the way, market will bottom out before the slowdown bottoms out. That is what usually happens. सर इकोनॉमी अगर डबल होता है हमारा तो हम कहाँ तक सेंसेक्स को देख सकते हैं सर? 4 लाख तक देख सकते हैं, इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं सर? मैंने मीटिंग में सुना था कहीं पे महिंद्रा मैन्युलाइफ की, तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर। देखिए 2003 में ना सेंसेक्स 3000 था, राइट? और अब कहाँ है आपको पता है? काय हो भाऊजी? हाँ जी, तो बेसिकली कोनो साला नौटंकी तो जोने से केस चला तो नहीं बैठा भाई था। हेलो, हाँ, हाँ जी। तो सेंसेक्स 2000, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 2003 से 2025 में 3000 से मान लीजिए 75,000 हुआ है, राइट, सेंसेक्स, सो विच इज व्हाट 15 times. So in the next 20 years or 25 years, can we be 15 times? If we do that, you can do the math. 15 times from 75,000. Now, it may not happen in 15 years. What I'm saying is that even if it happens in 25 years, usually our return has been doubling every 5 years. That is the average. 15%. 15% का EPS ग्रोथ, सॉरी टू इंटरप्ट राजेश सर, 15% का EPS ग्रोथ पकड़ो रितेश भाई। तो 15% मतलब डबल इन 5 साल में डबल। क्या बोल रही तो हम सोचे कि राजेश, हाँ, या तो 15% per year, that has been an average. 15% per annum means double in every 5 years, quadruple, 4 times in 10 years. 5 years the market will get. I believe Vivek Shirvade sir is having one question. Yeah, over to Vivek sir. Yeah. Sir, couple of questions. We are seeing that we are in the elevator. So, what is the basement? Is it going to be 20,000 Nifty, or is it 19,000 Nifty, or what you see? That is one. Number two, what do you see as the impact of AI? Because AI seems to be a
big buzzword, at least in the services sector. Since India is a dominant player globally for services, so with the AI, I believe that there would be a stronger impact, and which will hit all across, because we are a services-led economy. We are trying to be getting out of that mode, but still we are a services-led economy. So उसमें क्या impact लगता है? Right. So मेरे ख्याल से, like I said, large cap valuation, I think Nifty will not decline as much as mid cap and small cap. आज का market या कल का market is also suggesting the same. The Nifty decline will not be as severe as the mid cap and large cap decline, if ever that is to be the case, right? जो हमें trend दिख रहा है. My sense is that that's my best guess. I don't know if I should give you a number, but मेरे ख्याल से the decline in the Nifty will be much lower. I don't think the Nifty is going to 19,000, but that is my personal conviction. Please don't hold me accountable for it. But मुझे नहीं लगता है कि 20,000 के नीचे Nifty जा रहा है. ऐसा मेरा मानना है, right? Large and mid cap में थोड़ा ज़्यादा correction हो सकता है. ऐसा मेरा मानना है. Sure. But that is my personal view. Like I said, please don't hold me accountable to it. Please do your own, make your own judgments. If you're asking for my best guess and my experience, then मुझे नहीं लगता कि 20,000 के नीचे जा रहा है बाजार. Cool. So that's one. Sure. So second is AI. See, देखिए AI, lot of the fundamental work is getting done in America or to some extent now even in China. We are not. जो let us say अगर Microsoft Office का बन रहा है तो Microsoft Office US में बन रहा है. हम Word को कैसे इस्तेमाल करें वो इंडिया में बन रहा है. I hope I'm able to make that point. We are in the application layer of building the AI rather than the foundation layer of building the AI. हमारे सॉफ्टवेयर कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशंस. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि एआई का एप्लीकेशन हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या कर रही है. तो लेट अस से अगर आप यूएस में हैं तो एल&टी माइंडट्री के मैं उनके एनालिस्ट मीट में गया था तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया वो क्या कर रहे हैं. ऐसे अन्य एग्जांपल दिए बट एल&टी माइंडट्री ने एक ऐसा एग्जांपल दिया. अगर आप यूएस में जाते हैं और आप कार हायर पर लेते हैं, और ये बड़ी इंडस्ट्री है, एवरीबडी हायर्स अ कार इन अमेरिका who's traveling from one city to another, or one country to the US. What happens is that when you take the car out, when you are hiring it, वो आदमी आपका कार देखता है कि कोई डैमेज नहीं है एक्सेट्रा, बिकॉज अगर आप डैमेज कर आए तो वो कॉस्ट आपको भरना पड़ता है अनलेस यू आर इंश्योर्ड. सो वो देखता है, वो फिजिकली देखता है कि गैस कितना पेट्रोल है उसमें एक्सेट्रा और फिर आपको जाने देता है. और अब जब फिर से आते हैं आपका सफर कर when you come back, again the man examines the entire car. You have to wait until he has examined the entire car, and then he says, okay, सब गाड़ी में ठीक है या यहाँ डैमेज है, आपको इसका पैसा देना पड़ेगा. Now AI is taking over this, which means आपको वो आदमी की जरूरत ही नहीं है. वो 10 आदमी खड़े होते हैं एग्जामिन करने के लिए, वो 10 की जरूरत नहीं है. AI स्कैन करेगा आपकी गाड़ी को when you are leaving and say, okay, there is no damage, and as soon as you come in, अगर डैमेज है एआई अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा यहाँ 4 जगह डैमेज है गाड़ी में, आपका ये कॉस्ट है, आपको इतना भरना है, ऑटोमेटिकली. सो बेसिकली दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ एआई दैट वी आर डूइंग नाउ. बजाज फाइनेंस ने एक अपना एनालिस्ट मीटिंग किया और उसमें बताया देयर आर 300 प्रोजेक्ट्स दैट दे आर वर्किंग ऑन एआई. तो वो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपको लोन चाहिए, आप फोन करते हैं, एआई आपसे बात करता है और बोलता है आपके लोन की कितना लोन चाहिए, आप एलिजिबल हैं कि नहीं. वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक मशीन से बात कर रहे हैं. अगर आपने थोड़ा जोर से बोल दिया, यार आप लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो वो सेंस करेगा कि आप इरिटेटेड हैं और पहले बोलेगा आई एम सॉरी सर जो आपको इरिटेशन हो रही है. मतलब एआई को इतना डिजाइन किया है कि आपका मूड भी समझ सकती है, आपका टोन भी समझ सकती है. दिस इज अगेन अनदर एआई एप्लीकेशन that our companies are working on. We are not working on the fundamental layer. Yes, so the impact is for companies which use AI, their costs will go down. मेरे एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा, अगर मेरे को ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है टू डिटेक्ट अ कार डैमेज और टू टॉक टू अ कस्टमर, machines can do the thing, my cost will go down.
So companies which adopt AI will definitely be superior to the ones which do not. As far as IT services companies are concerned, their coding requirement will come down, but their ability to offer solutions, that capability will have to go up. So they don't need now just programmers, they need thinkers. So the capability curve of the companies will have to improve as you move forward. So all in all, I think AI will be of a positive thing only. Every technology that comes, people worry. जब गाड़ियां आई तब लोगों ने बोला ये घोड़ा गाड़ी में कौन जाएगा, इनके तो घोड़ा गाड़ी तो पूरा बंद हो जाएगा इनका, etc. लेकिन that change has, maybe the घोड़ा गाड़ी वाला निकल गया, लेकिन it has resulted in many jobs. So every technology that comes, I think it brings some uncertainty. I remember in the 1980s when I was learning computers, somebody said कि computers आने से typist के job चले जाएंगे, बहुत सारे नौकरियां निकल जाएंगी. But what has happened? The world has exploded. We have become even more prosperous in the last 30-40 years. Entire world has become more prosperous. So technology के usually over a long period of time benefits ज़्यादा आते हैं, harm कम आता है. Sir, I hope I've answered your question. Yeah, sure. Got the answer, sir. Thank you very much. Another question, sir, if I have a permission, space tech seems to be in the early stages. So what's your take on that, space tech? नहीं, ऐसे, I'm not paying too much attention to it, honestly, because I don't think there are too many public companies that I can invest in. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. We have another question from Mr. Samir Takkar. Yes, Samir, sir, please go ahead. Yeah. So good evening, Rajesh sir. Like I think you already partly answered my question that I think mid and small caps are already on the way down to an accelerator. So if we want to move our way up in the coming months, is there a particular sector which we should bet on, or is it still better to have a kind of a multi-cap strategy which we should apply in the point of time? See, multi-cap strategy is always, I would say it gives you probably stability. Flexi cap, or a multi-cap strategy definitely gives you greater stability. Unless mid-cap and small-cap gets beaten down to such an extent that they themselves give you very attractive risk reward. From a sectoral perspective, मेरे ख्याल से थोड़े shifts आएंगे. I think last cycle मतलब जो cycle चल रही है, लेकिन हाल ही में last 2 या 3 साल से capital goods sector has been doing very well. Railways, etc. ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा अनुमान है. Again, don't hold me to it, but मुझे लगता है कि शायद leadership of the market will change. मुझे लगता है कि जो last cycle में जो जिस तरह ferociously capital goods ऊपर गए, मेरे ख्याल से वही rate पे वो ऊपर नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है. So to some extent the leadership will change, but to answer your question, that is sectorally. But to answer your question, my sense is it's I always prefer the flexi cap and multi cap format to participate in markets. Unless, of course, there is some portion of the segment which I want to keep to small caps, and especially small caps. देखिए कभी भी ना मार्केट में सब कुछ ओवरडू हो जाता है. ऊपर के साइड में भी बहुत कुछ ओवरडू हो गया. आई एम होपिंग कि नीचे के साइड में भी थोड़ा ओवरडू हो जाए, और अगर ओवरडू हो गया मेरे स्मॉल कैप में, तो आपको नेकेड स्मॉल कैप एक्सपोजर लेना भी आई थिंक विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव. Hello. Yeah. Is that the question has been answered, Samir sir? All right. Thank you. Yeah, Manish, sir. Sir. Yeah. So, sir, like you said, that leadership is going to change in the next leg of on our way up. So, who is going to hold the leadership? I think if you can hint on that, I think that would again give us some idea. I would say broadly, मुझे लगता है consumption oriented sector. See, what is the opposite of capital goods? It's consumption. So if capital goods is not going to be the leadership, मेरे ख्याल से somewhere it will be the consumption oriented. Now, I can't specifically point out
one or two, but I'm just saying that if it is not capital goods, it will be somewhere in the consumption-led sectors that will take up the leadership. All right. Right, sir. Thanks a lot. Thank you. मयूर सर, आपका क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? येस, ऍक्च्युली कॅटेगरी आहे त्याबद्दल थोडं विचारायचं होतं. तो राजेश सर, मयूर सर वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट अभी कौन से सेक्टर चलेंगे या कौन से सेक्टर आपको सस्ते नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ से आगे आपको रनअप मिलेगा. द सेम क्वेश्चन व्हाट समीर सर ने जो पूछा उसका एक्सटेंशन है. देखिए, लार्ज कैप में ये कहना आसान है कि वैल्यू कहाँ है, राइट? बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ओनली वैल्यू बट ग्रोथ कहाँ है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. मेरे ख्याल से वैल्यू तो प्राइवेट बैंक्स में आ गए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में है, IT कंपनीज में है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है. यहाँ तो वैल्यू मुझे दिख रही है कि आ गई है. प्राइवेट बैंक्स, लाइफ इंश्योरेंस, टू सम एक्सटेंट IT एक्सेट्रा. बट आपको ग्रोथ भी चाहिए, राइट? यहाँ के ग्रोथ रेट भी थोड़े मॉडेस्ट ही रहेंगे. ग्रोथ रेट इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, डिजिटल कॉमर्स बिजनेसेस, जैसे कि वो सब बिजनेस, बट उसकी ग्रोथ रेट भी हाई है लेकिन उनकी वैल्यूएशन भी काफी हाई है. सो वैल्यू तो मुझे मेरे सेक्टर्स बता दिए. ये ग्रोथ रेट वाले जो सेक्टर्स हैं, जो जहाँ हाई PE है, वो PE करेक्ट हो रही है. लेकिन मेरे ख्याल से जब वो करेक्ट हो, दे विल अगेन बिकम गुड अपॉर्चुनिटीज. तो जैसे कि डिजिटल कॉमर्स बिजनेस में क्विक कॉमर्स है, डिजिटल इंश्योरेंस है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनियां हैं. ऐसे अन्य कंपनीज जो करेक्ट हो जाएं, मेरे ख्याल से दे विल बिकम अट्रैक्टिव. And what's your view on financial services fund? Financial, like I said, मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑलरेडी अच्छे वैल्यूएशंस पर हैं. आई वुड से मैं तो कहूंगा कि थोड़े बहुत PSUs भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ गए हैं. बैंक्स एंड NBFCs also at the margin are benefiting from कि उनके इंटरेस्ट रेट जैसे कट हुए हैं तो उनका डिपॉजिट रेट कट होता है, लेकिन अगर वो एसेट लेंडिंग करते हैं तो उनका लेंडिंग रेट कम नहीं होता. सिक्योर्ड, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ट्रक फाइनेंस किया है तो ट्रक फाइनेंस का रेट कम नहीं होता लेकिन आपका कॉस्ट कम हो जाता है. तो NBFCs also at the margin have become attractive. तो मेरा थोड़ा बहुत फेवरेबल व्यू है ऑन फाइनेंशियल्स. कैपिटल मार्केट प्लेस को लेकर, जैसे कि अब मैं नाम नहीं, बट एनीथिंग दैट इज कैपिटल मार्केट रिलेटेड, RTA, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट्स एक्सेट्रा, मेरे ख्याल से एक्सचेंजेस, वो थोड़े अभी भी, अगर बाजार को नीचे आना है तो ये सब का बिजनेस एक्टिविटी भी कम होगा. तो वहां मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ. ओके, थैंक यू सर. ये कुछ स्मॉल एंड मिड कैप की जो SIP है, लोगों की एक क्वेश्चन है, सुमित जी ने पूछा है, तो इसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए या फिर डिसकंटिन्यू कर स्टॉप करके मल्टी एसेट एलोकेशन या फिर बिजनेस साइकिल कैटेगरी या मल्टी कैप में जाना चाहिए? देखिए, अगर SIP का लाभ तभी होता है जब वो नीचे में आप कंटिन्यू करें. बट स्मॉल कैप मिड कैप में सर SIP तो उसको स्टॉप करना है? नहीं, अगर मेरी राय पूछें तो ऐसा नहीं करना चाहिए. दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन. SIP का लाभ तब होता है जब वो नीचे जा रहा हो. नीचे में एवरेज करने में ज्यादा फायदा है. नीचे में अगर आप एवरेज नहीं करें, सिर्फ ऊपर में एवरेज करें तो वो गलती है. आपको बंद करना चाहिए था तो ऊपर में बंद करना चाहिए था, नीचे में नहीं. दैट इज माय सिंपल कॉमन सेंस आंसर. सर, ये जो अभी 12 लाख का टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, इससे कंजम्पशन ऊपर जाएगा, ऐसा मतलब एक क्वेश्चन है, तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट इन शॉर्ट? देखिए, 1 करोड़ लोगों को 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है, राइट? तो 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ लोगों को 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिला है, राइट? दे हैव सेड दैट 1 लाख करोड़ इज द रिडक्शन इन रेवेन्यू. सो of course 1 crore people, if they are getting 1 lakh, to that extent discretionary consumption will go. So मेरे ख्याल से उसका definitely फायदा होना चाहिए. So right. शायद that is the reason why consumption could take some leadership as you move forward. Super. I believe the most of the questions what actually the people have asked, Rajesh sir, you had been already addressed it well. एक अच्छा नैरेटिव आपने दिया है, and there is something really great. Any more questions what we have?
सर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में क्या व्यू है आपका? सॉरी, दिस इज विवेक अगेन। क्या है? नहीं, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरी है। वैल्यूएशंस थोड़े कंफर्टेबल नहीं थे, अगर वो नीचे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज विल डू वेल। थैंक्स। सर मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, जी प्रकाश। सर जैसे अभी आपने कहा कि SIPs जो स्मॉल कैप वाली है उसे स्टॉप नहीं करना है, बिकॉज कैसा वो लॉन्ग टर्म में जाएगी तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगी, ये सही है। जी। पर मार्केट थोड़ा थोड़ा और वापस माइनस में जा रहा है। जैसे आज 1000 से कुछ तो भी मार्केट और सेंसेक्स माइनस में गया है, तो अभी ऐसी सिचुएशन में हम स्टॉप न करते हुए उसी को अगर ट्रांसफर करे, मतलब स्मॉल कैप का जो अमाउंट है उसको मिड कैप या लार्ज कैप में ट्रांसफर तो कर सकते हैं ना, वो मैनेज करने के लिए वेल्थ। ये आई थिंक वो निजी डिसीजन है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से अगर आपको आई डोंट हैव एनी कमेंट कि आपको क्या करना चाहिए, बट माय सेंस इज दैट इफ अगर आपको आपके मेंटल कंफर्ट के लिए अगर आपको लार्ज कैप में जाना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स आप जारी रखें। SIP का पर्पस इटसेल्फ इज की यू कीप बाइंग इन द वे डाउन। वो बट लेकिन आपके क्योंकि mental मार्केट comfort- अभी आपके मेंटल हाँ कंफर्ट जी पे हाँ ज्यादा डिपेंड करता है। जी। सेंसेक्स का रेट देखते हुए थोड़ा चिंता हो रही है और कुछ नहीं। आप अकेले नहीं हैं। इसको इन पर्सन ले लेंगे दीपिका मैडम, मैं समझ लूंगा कि आपके पोर्टफोलियोज कैसे हैं, एंड देन जो भी जैसे भी पोर्टफोलियो रहेंगे उसके हिसाब से वी विल गोइंग टू टेक द कॉल ऑन दैट। सर ऐसे मैं नहीं हूँ इंपीरियल में, अभी मेरी ये फर्स्ट मीटिंग है, बट जो बात कर लग रहा है वो मैंने पूछा आपको। नो प्रॉब्लम दीपिका मैम, नो इश्यूज। Yes. थैंक यू वेरी मच फॉर Thank आस्किंग। you so much. थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हाँ हेलो प्रसाद सर। सर। हाँ प्रसाद सर बोला। सर मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है क्या नहीं अभी? मल्टी एसेट हमारे पास नहीं है, लेकिन मल्टी एसेट फंड मेरे ख्याल से अच्छा ही है। और वो खुद बोलते हैं कि मल्टी एसेट डाइवर्सिफाइड है, तो आपको ज्यादा एसेट एलोकेशन की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर कोई आपका मल्टी एसेट फंड है जो अच्छा है आपको लगता है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई टाइमिंग करने की जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। No more questions? First class. So, I would request Nitesh to give the final note of thanks. On behalf of everyone here, I would like to extend our heartfelt thanks to Mr. Rajesh Bhatia sir for his insightful session on the topic Market Outlook. Your expertise and clear explanation of complex trends have given us a deeper understanding of where the market is heading and how we can navigate it effectively. Your practical advice and forward-looking perspective are invaluable, especially in these dynamic times. Thank you once again, sir, for sharing your knowledge and guiding us. Thank you very much, Rajesh sir. It was indeed fantastic time with you, और मजा आया आपसे बात करके। Thank you so much. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you. And thank you everyone for joining today's meeting. Thanks a lot, sir. Thank you.